conversation point number 3. And this is an extremely important one as well, viewers. Farmers have begun to gather in large numbers around the Delhi borders in multiple states. Hundreds of them were actually on streets yesterday in Hisar protesting against the government there as well. Now tomorrow they have planned a mega protest to mark and observe 6 months of their overall movement against the farm laws that were brought in by the center. Now tonight's conversation isn't about the merits of the farm laws. We've done more than enough debates about that. We hope at some point dialogue is reinitiated between the center and the farmers, and the government along with the people find a way out when it comes to these farm laws. My point tonight is to ask whether this is the right time to allow these hundreds and thousands of people to gather in such numbers and protest. The second wave is currently still here. Many parts are reeling under it in a very, very bad way, even though there may be a relief on a national number level. COVID hasn't gone away. Our healthcare infrastructure is still overburdened. We are still registering a high number of deaths, over 3,000, 4,000 deaths every day. 3 lakh people so far have died of COVID only officially. Imagine the overall number. Is it all right to then have this kind of a plan? What if then these farmers go back to their villages and carry the virus with them? Can rural India as well afford another big shock? That's the question I want to ask tonight. And I want to ask the political parties who are backing this call for protest. Have you forgotten that in each of the states where you are governing, the biggest challenge right now is COVID? Have you forgotten that there is a pandemic going on in our country right now and people are dying? That till a few days ago, people were struggling for oxygen and gasping for breath in this country? Is that all now forgotten simply because you want to do politics and pretend to stand with the farmers? That's my question tonight. Let me say good evening to those who are joining us right now. R.P. Singh, National Spokesperson for the BJP, Wing Commander Anumacharya of the Congress Party, Abhimanyu Kaur, National Coordinator for Rashtriya Kisan Mahasangh, and Dr. Rajiv Das Gupta, Chairperson for the Center for Social Medicine and Community Health, joining me right now. And I want to actually start off with Abhimanyu Kaur. Kaur ji, क्या आपको नहीं लगता ये बहुत डेंजरस चीज प्लान हो रही है? सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, इतना बड़ा हंगामा हुआ जब पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी इलेक्शन के समय और हम पार्टियों से सवाल पे सवाल पूछ रहे थे, उसकी वजह से केसेस बढ़ गए और अब हम वही कर रहे हैं इस आंदोलन के थ्रू। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज ये है कि पिछले 6 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर लाखों किसान बैठे हैं। 500 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है। कहने के लिए हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन देश के किसान, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता है, उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। कभी उसको आतंकवादी कह के, कभी खालिस्तानी कह के, कभी फॉरेन फंडिंग का आरोप लगा के उसका मजाक उड़ाया जाता है। कभी हरियाणा के मंत्री किसानों की शहादत पर हार्दिक संवेदनाएं देते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। हिसार की जहां तक घटना है तन्वी जी, मैं उस पूरी घटना के बीच में रहा। 16 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दौरे का किसान भाई शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। पुलिस ने हैवी लाठीचार्ज किया, आंसू गैस से गोले छोड़े। सभी चैनल्स ने दिखाया किस तरीके से हमारी माताओं बहनों के सर फूट गए थे और खून बह रहा था सर में से। किसानों ने उसके बावजूद बड़ा दिल दिखाते हुए शाम को आईजी ऑफिस में हुई मीटिंग के दौरान एक पंचायती समझौता कर लिया। लेकिन अगले ही दिन से हिसार प्रशासन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला के आदेश पर उस पंचायती फैसले का अपमान किया। उसके बाद हम 18 तारीख को दोबारा से आईजी ऑफिस में गए क्लैरिफिकेशन करने के लिए कि पंचायती फैसले का इज्जत की जाए आपकी तरफ से, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। हमने उसके बाद 19 तारीख को मजबूरी में 24 तारीख को इस बड़ी महापंचायत का ऐलान किया, जिसके तहत कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया जाना था। तो जो पंचायती फैसले का अपमान किया गया, जो किसानों का मजाक उड़ाया गया, जो किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया, उसके बाद ये हमारी मजबूरी थी कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें, और हमने बिल्कुल दिया है। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, और कल सैकड़ों नहीं, आप कह रहे थे फ्यू हंड्रेड, नॉट फ्यू हंड्रेड,
कल 1 लाख से भी ज्यादा किसान हिसार में इकट्ठे हुए थे और वहां पे हमने हिसार प्रशासन को, मनोहर लाल खट्टर की सरकार को झुकाया है और उसी पंचायती फैसले को दोबारा से मनवाया है जो पंचायती फैसला 16 तारीख को हुआ था। और नहीं, कल का लेकिन जो हमारा अभिमन्यु कुंवर कार्यक्रम जी, है, अभी आपने मुझे बताया इस आंदोलन के दौरान कितने कितने किसानों की मौत हो गई, कितनी जानें हमने खोई। आप ये जानते हुए कि अभी एक महामारी चल रही है जो बहुत जानलेवा है, जिसके लिए हमारे किसी भी राज्य के एटलीस्ट गांव में और छोटे शहरों में वैसा अरेंजमेंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप इतने हजारों लाखों किसानों की फिर जिंदगी को क्यों ऐसे रिस्क पे डाल रहे हैं? देखिए, पिछले 25 सालों में लगातार सरकारों की गलत नीतियों के कारण ऑन रिकॉर्ड 5 लाख किसानों ने सुसाइड किया और ऑफ रिकॉर्ड ये 25 लाख किसानों की मौत हुई है। पिछले 25 सालों में जब 25 लाख किसानों की मौत हुई तो किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि हमारे देश का अन्नदाता आत्महत्या करने पे मजबूर क्यों हो रहा है। तो अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं हुए, यदि एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना, तो किसान की आत्महत्या का आंकड़ा कई गुना बढ़ जाएगा। तो किसान के लिए तो इस तरफ भी मौत है, उस तरफ भी मौत है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। और यदि केंद्र सरकार हमारी मांगों को लेकर, हमारी तबीयत को लेकर, मैं कहूंगा किसानों की हेल्थ को लेकर गंभीर है, और मीडिया वाले भी, आप एक बहुत रेपुटेड चैनल है, यदि आप भी हमारी हेल्थ को लेकर गंभीर है तो हम आपसे भी एक ये निवेदन करते हैं और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हमारी दोनों मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। हम अगले ही मिनट, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, यदि हमारी दोनों मांगे पूरी हो गई, हम अगले ही मिनट दिल्ली के बॉर्डरों को छोड़ के अपने गांव में चले जाएंगे, अपने खेतों में खेती का काम करेंगे। हमें सड़क पे बैठने का कोई शौक नहीं है। अगर हम सड़क पे बैठे, हमने पूरी ठंड सड़क पे बैठ के बिताई है। आज गर्मी के दिन में इतने मच्छर होते हैं तन्वी जी वहां पे कि रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी मजबूरी है, हम मजबूरी में वहां डटे हुए और डटे रहेंगे अंतिम सांस तक। ठीक है, लेकिन आरपी सिंह प्लीज कम इन हियर और इस बात का जवाब दीजिए कि वो कह रहे हैं कि जहां वैसे ही हर साल इतने लाख सुसाइड हो जाते हैं किसानों की, वो बढ़ जाएंगे नए फॉर्मूला से, उसका डर ज्यादा है, दैट इज अ बिगर कंसर्न देन एनी कंसर्न ड्यू टू अ पैंडेमिक। अभिमन्यु, सिंस अभिमन्यु विल अंडरस्टैंड हिंदी बेटर, तो मैं अभिमन्यु से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं आपसे, दोस्त, हाथ जोड़कर ये आप आंदोलन जरूर करना, अवश्य करना, परंतु 6 महीने बाद, साल बाद कर लेना, कौन रोक रहा आपको दोस्त? कोई रोक नहीं रहा आपको। और वैसे भी अभी कानून तो कोई लागू हो नहीं रहा, सब तो कानून स्थगित हैं, सबके सब। वो तो सरकार ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सारे कानून स्थगित हैं। हरियाणा और पंजाब को अकेले को मिलाकर कोई 21,000 से ऊपर लोग अपनी जान गवा चुके हैं। आपके किसान आंदोलन के अंदर एक बिटिया की जान चली गई और एक और सज्जन की जान चली गई, बाकियों को पता नहीं कितनों की जान गई होगी, पता नहीं, कोई खाता नहीं। इसलिए हम तो हाथ जोड़कर आपकी लड़ाई लड़ो, हम मना नहीं कर रहे। हम, सरकार भी आपसे वार्तालाप करेगी, जैसे ये थोड़ा हालात अच्छे होंगे सरकार वापस आपसे वार्तालाप भी करेगी। वार्तालाप करने से मना नहीं करेगी। 11 बार, अगली बार, पिछली बार वार्तालाप की थी, अभी दोबारा आपसे वार्तालाप अवश्य करेंगे। परंतु इस समय स्थिति विकट है। इस समय जो लोग बॉर्डर पर आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। उनकी पार्टी बेशक सपोर्ट करती रहे आपको, परंतु सच ये है कि कैप्टन साहब कह रहे हैं कि नहीं, उनके खुद के मंत्री कह रहे हैं, सिर्फ बाजवा, कि आप बड़ा कारण बन गए हैं पंजाब के अंदर जो फैल रहा है कोरोना। तो इसलिए हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप राजनीतिक दलों के दबाव में आकर या राजनीतिक दलों के शय पे आकर इसे मत करिए। आपका भी इसमें, आपकी भी बदनामी हो रही है। मैं खुद किसान हूं, समझता हूं बात को, क्योंकि आपकी भी इसमें बदनामी हो रही है कि आपके कारण से कोरोना फैल रहा है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, देखो ईमानदारी से हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, और ये हाथ जोड़कर आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कर लेना, 6 महीने बाद कर लेना, वापस आ जाना, कोई रोक छोड़ा आपको, साल बाद वापस आ जाना, जब कोरोना ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जाए, आपका स्वागत है। आप करिए आंदोलन, कौन रोक रहा है आपको? परंतु इस समय हालात नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा। आप Okay, before I go across to Congress, एक सेकंड, जितनी स्टडीज हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो वेरिएंट, अभी जो ये कोरोना का वेरिएंट इधर है, वो जो वेरिएंट है वो यहाँ से निकल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टडीज है, डॉक्यूमेंट एविडेंस है जो प्रूव कर रहे हैं इस बात को। तो अगर ये एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं इस पे कि वेरिएंट यहाँ से चल रहा है,
तो क्यों भैया थोड़े दिन बात कर लेना। आप महापंचायत छोड़ो, बड़ी बड़ी सभा करो, 1 लाख छोड़ो, 10 लाख की सभा करो, आगे आपने महापंचायतें की। Okay, Mr. आगे Singh, लोकल while बॉडी on conceptually I agree with you, not on the fact about where the variant came from. It was first the double mutant was first seen in many parts of India, especially in Maharashtra. But it's interesting that आज आप ये कह रहे हैं और कि ये बाद में कर लेना, पर यही बात कुछ एक आध हफ्ते पहले तक किसी को याद नहीं थी, जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे और कैंपेनिंग चल रही थी, या जब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैली सब नेता लोग कर रहे थे। अभिमन्यु कौहर, प्लीज रिस्पॉन्ड बिफोर आई गो टू द कांग्रेस पार्टी। आपका जवाब। जी नहीं, दूसरों को लेक्चर देना बहुत इजी है मिस्टर आरपी सिंह। खुद को जब इलेक्शन जीतते थे तो सारे नेताओं ने कैंपेनिंग कर ली, तभी भी ये वेरिएंट यहीं पे था, तभी भी सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे, पर आपने नहीं सुना तब। रुकिए, महापंचायतें भूल गई क्या? कुंभ मेला भी नहीं रोक पाया। भूल गई क्या? और मैं किसान भाई से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस ने 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी की बात करी थी, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी की बात करी थी पंजाब के अंदर। ओके, हाँ, उसके बारे में इलेक्शन नहीं बोलेंगे। एक मिनट, मुझे नहीं किसी की बात समझ में आ रही। एक मिनट। आरपी सिंह जी, तो हम ये आंदोलन कर रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं 6 महीने बाद फिर से आके बैठ जाइएगा। कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आपको दोबारा यहाँ पे आके बैठने देंगे। हम आपके कोई मर्जी से, आपकी कोई इजाजत से यहाँ पे नहीं बैठे हैं। आपने तो हमें रोकने के सैकड़ों प्रयास किए थे, सड़कें खोद दी थी, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, पानी की बौछारें की थी। आज किसान समाज अपनी ताकत के दम पर यहाँ पे आके बैठा है। दूसरी बात, जो आप कह रहे है कि कानून अभी स्थगित कर दिए गए, मैं आपको हरियाणा का उदाहरण दे देता हूं। हरियाणा के अंदर आपने अब की बार 17 मंडियां तो बंद कर दी और सैकड़ों मंडियों पर आपने ताले लगवाए थे, लेकिन किसानों ने अपनी ताकत के दम पर ताले तोड़े हैं। आपने हरियाणा में किसानों को मजबूर किया कि आप अपने गेहूं मंडियों में लेके नहीं जाओगे, आपको मजबूरी में अपना गेहूं साइलोज में लेके जाना है। हमने ग्राउंड पे लड़ाई लड़ी, मंडियों के ताले तोड़े और उसके बाद कहा हमारे गेहूं का एक एक दाना मंडियों में आएगा, किसी साइलों में नहीं जाएगा। आपने आढ़तियों के खिलाफ पर्चे देने की धमकी दी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी कि यदि मंडी में एक भी दाना गेहूं का गिरवाया तो जेल में भेजेंगे। तो आपने कान पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने अपनी ताकत के दम पर आपको फेल किया है। ओके, बट ओवरऑल अभी भी लॉ सस्पेंशन में है, तो क्या ये प्रोटेस्ट अभी जरूरी है? आई वांट टू गो अक्रॉस टू विंग कमांडर अनुमा आचार्य। Wing Commander Acharya, when the Chief Minister of Punjab, a Congress leader, himself is concerned about the situation, himself went ahead and appealed to the farmers to not hold this protest right now. Was it fair for the Congress party, for its own political benefits, to then go ahead and back these protests politically? Tanvi, I must appreciate you are very balanced, and the question you asked me, the Chief Minister of Punjab has always been with the farmers in spirit. But since he is in a constitutional position, there he is abiding by the procedures which our Prime Minister did not do while doing rallies across West Bengal. So he is very he is caring and concerned about the welfare of people as a Chief Minister, but in spirit he is with the farmers. And come to think of it, the government has left them for fully devastated. The farmers have no choice. They are between the devil and the deep sea. They have to do this for their existence. You think about the movement, the Black Lives Matter movement. George Floyd was choked to death by police cops. Were they waiting for any good moment or shubh muhurtam to start the protest? It was COVID. COVID was still there. Then there is another movement which is going on in Hong Kong for democracy. So movements have a different connotation. They have a different spirit. It is a fight for their identity, which is much bigger than the political party fighting for elections. So my point here is this is for their existence. Tomorrow is a significant day. But who's going to fight for their lives right now, Wing Commander Acharya? My point is, Wing Commander Acharya, who's going to fight for their lives? Who's going to save their lives? Look, it is not a super spreader as people have been commenting, because it is only in a pretext of being super spreader. We have heard only 2 deaths, and that is also not reported in the farmers' protest sites. And what they are saying, much more than that is there in our villages. I am not comparing the two. What I am saying is, if we have medical facilities, and it's a matter of tomorrow, because it is 26th
May is they are completing 6 months of their protest, and they are fighting for a cause because government is as such not listening them. If government was careful enough or they had anything about the farmers, they would have repealed the laws. No, then there was no point of protesting. They should have considered that. But how insensitive statement we have just heard, in which the BJP spokesperson says, "6 mahine baad aa jana." Why? It is their self-esteem. It is their very existence which is Because the at stake. pandemic is This still why we- on and the laws are in suspension, Wing Commander Acharya. The pandemic is still on and the farm laws are already in suspension as per the Supreme Court orders. So there is absolutely no not it- urgency for us to why be were doing they- this protest right now. Tanvi, why- Let me now, why they were because not you raised a point, repealed? allow me this Why please, the because you government raised a cannot point be to say that is a different thing. That's a completely different thing. And that's a completely different conversation. Right now, we're talking about what the current situation is. Because you made a point about super spreader events, I want to bring in Dr. Rajiv Dasgupta. And Dr. Dasgupta, like I started off in the beginning, tonight we're not here to debate the merits of the central laws, but we are here to talk about the impact that can be there when large crowds gather during times of a pandemic. And it is odd because the organizers of Kumbh Mela will tell us that wasn't a super spreader event. The organizers of political rallies and the campaigners will tell us that those rallies never led to a surge in places like Bengal and Assam. And now we are being told that this will also has not been a super spreader event so far. Well, the issue is as emotive as political, no doubts about that. And both the political representatives have made their articulation, and it's fairly easy to understand where they're coming from. However, doubtless any such congregation, and this is a massive size that we are talking of, is without any doubt a super spreader. But let's be clear about this. And this is at a time when we are certainly not out of the woods. There is at least 3 million, that's 30 lakhs active cases in the country, and certainly quite a bit of it in this region. So just like no congregation can really meet with sanction, whether it's a religious congregation, whether it were poll rallies, the same argument holds here too. One can only hope that the political leaderships are bipartisan about it, keeping the pandemic in mind. This is the moment for bipartisanship, and I hope such sense will prevail. Exactly. So this isn't about, I mean, I agree with you, extremely emotive. It's also political, and livelihoods of farmers in the long term when it comes to the laws are at stake. But not right now. अभिमन्यु कोहर जी, जब तक कि ये लॉज इंप्लीमेंट नहीं होते तब तक आप पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला है. तो क्या इस समय ज़रूरी है, सबसे बड़े से बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स यही कहेंगे कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे तो वहां से बीमारी फैलेगी ही. देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको तन्वी जी क्लियर करूं बिल्कुल कि हमारे सभी धरनों पे रेगुलरली प्रॉपर तरीके से हम खुद सैनिटाइज करते हैं. और उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले जो आयुर्वेदिक काढ़ा थे वो बड़ी मात्रा में हर लंगर में डिस्ट्रीब्यूट किए गए. अगर आज के दिन भी मैं बात करूं तो कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आए थे जिन्होंने विटामिन सी, विटामिन डी और भी बहुत तरह की टैबलेट्स थी जो इम्यूनिटी बूस्टर थी, वो बाकायदा हम पर्सनली जाते हैं सभी लंगरों में और अपनी जिम्मेदारी मान के सभी किसानों को वो देते हैं और किसान उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, मैंने जैसे आपको कहा, यदि आज आप सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे जाके देखेंगे तो वहां पे जो बांस की जो झोपड़ियां बनी है वो हजारों की संख्या में वो बनी है. इतना हमारी तरफ से तन मन धन का हमारी तरफ से इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है कि अब हमारे पास पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं है. चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, हम आंदोलन लड़ेंगे और हम आंदोलन निश्चित तौर पे जीतेंगे. और आंदोलन जीतने के बाद ही हम वापस अपने घर जाएंगे, उससे पहले हम अपने घर नहीं जाएंगे. ये बात हम स्पष्ट और दो टूक अंदाज में कहना चाह रहे हैं. पर क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं वापस आते आप थोड़े समय बाद? ऐसा क्या है कि अब आप पीछे इस समय नहीं हट सकते? ये कोई ईगो या अहंकार की बात तो नहीं हो सकती.
नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि 6 महीने में अगर आप पिछले 6 महीने का उठा के देखें, हमारे 500 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है। इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हर तौर पे, तन के तौर पे भी, मन के तौर पे भी, धन के तौर पे भी, हर तरीके से इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी साइड से हो चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है आगे बढ़ना और आंदोलन को जीतना। मुझे एक बात मुझे समझ नहीं आती, जो मोदी सरकार आज सत्ता में है, ये इसी जनता द्वारा तो चुनी गई थी ना। आज ये मोदी सरकार इसी जनता को हरा के क्यों जीतना चाहती है? जिस जनता ने मोदी सरकार को चुना था, लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन सबसे बड़ा होता है। भाई जब एक बात बताइए तन्वी जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोदी सरकार कह रही है कि इन कानूनों के माध्यम से हम किसानों का भला करेंगे। अरे भाई हमें खुद लग रहा है इन कानूनों से हमें नुकसान होगा, तो आप हमारा जबरदस्ती का भला क्यों करना चाहते हैं? यदि कल को कोई व्यक्ति आके कहे कि आप बहुत अच्छे से पत्रकारिता करती हैं और वो आपका भला करना चाहते हैं, लेकिन आप कहें कि ऐसा वो भला आपको नहीं चाहिए, इन चीजों से आपको नुकसान होगा, तो क्यों आप कोई जबरदस्ती भला करने में लगा हुआ है? भाई हम जिस तरीके से जी रहे हैं उसी तरीके से हमें जीने दो। ऑल ओवर वर्ल्ड का ये अनुभव है, फ्री मार्केट पॉलिसीज, फ्री ट्रेड पॉलिसीज पूरे तरीके से किसानों को बर्बाद कर देती हैं। आप अमेरिका का एग्जाम्पल उठा लीजिए, आप चाइना का उठा लीजिए, इंग्लैंड का उठा लीजिए। मैं अपनी बात को बस खत्म करता हूं 20 सेकंड में। ये फ्री मार्केट पॉलिसीज अमेरिका और अन्य यूरोपियन देशों में आज से 20 से 25 साल पहले आई थी, लेकिन वहां पे यदि बात करें तो अमेरिका ने 2018 में अगले 10 सालों के लिए 847 बिलियन यूएस डॉलर का सब्सिडी बिल पास किया। वहां पे हर साल प्रत्येक किसान को 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। ब्रिटेन के अंदर 100 बिलियन डॉलर की सब्सिडी मिलती है, चाइना के अंदर 212 बिलियन डॉलर की सब्सिडी मिलती है, ओईसीडी देशों के अंदर 240 बिलियन डॉलर की सब्सिडी मिलती है। यदि ये फ्री मार्केट पॉलिसीज इतनी अच्छी होती तो आज के दिन अमेरिका और अन्य यूरोपियन देशों की सरकारें इतनी भारी भरकम सब्सिडी अपने किसानों को देने पर मजबूर क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये फ्री मार्केट पॉलिसीज पूरी तरीके से फ्रॉड है, एंटी फार्मर है। हमें भारत में ये फ्री मार्केट पॉलिसीज नहीं चाहिए और इन फ्री मार्केट पॉलिसीज के खिलाफ WTO गेट समझौते नहीं तो मैं एक बात कह दूं कोहर जी, मैं एक बात कह दूं कि आप और हमारी काफ़ी डिबेट्स पे आ चुके हैं, दर्जनों कर चुके होंगे हम पिछले 6 महीने में जब से आपका आंदोलन चल रहा है, जिस पे हमने मेरिट्स की बात की है। आज हम वो नहीं करेंगे। आज मेरे को एक फोकस और चिंता ये है कि अगर इतने लोग वापस से बड़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं तो आगे जाके उनको या और उन्हीं की फैमिलीज, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बड़ों पर क्या इम्पैक्ट होगा। और ये सवाल मैं पॉलिटिशियन से भी पूछना चाहती हूँ। मिस्टर RP सिंह, इवन टू यू, why are the states not able to stop them right at the beginning rather than allowing them to march forward and gather in bigger and bigger numbers? Why are we allowing this in states like Haryana where clearly there is absolutely no stoppage when thousands of them begin to gather over days? Tanvi, I'll hope you will allow me to speak for a while because you allowed it quite a time for to Mr. अभिमन्यु। अभिमन्यु साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या सरकार ने MSP पे खरीद बंद कर दी है क्या, या सरकार ने पिछले साल से MSP पे खरीद ज्यादा नहीं की? एक बात। दूसरी बात, किसान के खाते में पैसे सीधा जाने शुरू हो गए या नहीं हो गए? तीसरी बात, राजेवाल और चुदुनी क्या दोनों के दोनों वो मीडिया वो क्या कहते हैं बिचौलिए नहीं है क्या? वो क्या वो किसानों के भय पे बिचौलियापना नहीं करते क्या? वो तो इसलिए वो आप किस बहकावे में आ गए हैं? मैं ये माफी चाहता हूँ, आपने कह दी, इतनी सारी बातें कह दी। मैं अभी भी आपसे किस दिन आप चाहेंगे तभी मैं चाहूंगा एक दिन आप अभिमन्यु और मेरे को अकेले बुला लीजिए। मैं कानून के ऊपर एक एक पॉइंट पे चर्चा करने को तैयार हूँ, एक एक पॉइंट पे द्वारा। और मैं चाहूंगा जितनी जल्द करें उतना अच्छा था कि ये बुलेखा निकले कि इस कानून के अंदर क्या कह दिएगा, जमीन खोज दी जाएगी। अरे कहाँ किसी की जमीन है, किसान की जमीन खोज दी गई बता दो। फिर ये कानून पहले से पंजाब में लागू है, कॉन्ट्रैक्ट था। मेरी बहन जी बैठी है कांग्रेस वाली, ये कॉन्ट्रैक्ट था, लागू था पहले से। हमने तो उसको जो ठेकेदार के पक्ष में था, हमने उसको आपके पक्ष में कर दिया, हमने आपके पक्ष में किया। और आज भी मैं माफी चाहता हूँ, आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के गांव से और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर पेप्सिको के द्वारा सामान खरीदा जा रहा है। हमारा वो इशू नहीं है। इशू दूसरा जो कहा जाता है कि मंडियां बंद हो गई, कहाँ का झूठ बोल रहे हो आप मनु? कौन सी मंडी बंद हुई? क्यों लगातार टीवी चैनल पर आकर झूठ बोलते हो? ये जो झूठ का डुगडुगी बजानी छोड़ो, ये राजनेताओं के चक्कर से बाहर निकलो। मैं तो आपको आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, अपने भले की सोचो, अपने भविष्य की सोचो। ये
राजनेताओं के चक्कर में मत फंसो। आपने कभी कैप्टन साहब से पूछा दोस्त 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा किस दिन माफ करेंगे? गुटका साहब की कसम, गुटका साहब हाथ में पकड़ा था और कसम खाई थी कि मैं 90,000 करोड़ का कर्जा माफ करूंगा। कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। समय सच ये है कि आपको बेकावे में बिला दिया गया। आपको कहा गया मंडियां बंद होगी। मंडी नहीं खुलेगी तब जब वहां की सरकार चाहेगी। हमारे हाथ में नहीं है, सेंटर के हाथ में नहीं है। पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, जो मर्जी सरकार हो, जब तक वो परमिशन नहीं देगी नई मंडी खोल ही नहीं सकती। परंतु नई मंडी आ जाएंगी, नई मंडी आ जाएंगी, पुरानी मंडियां खा जाएंगी, पुरानी मंडियां खत्म कर दी। तो सर ये झूठ का प्रचार और झूठ के कुप्रचार में बाहर निकलो। अभी जान का मामला है। अभी देश के आगे बड़ी विकट स्थिति अभी निकले नहीं हम इस स्थिति में से। 21,000 से ऊपर लोगों की डेथ हुई है। आप तो 500 कह रहे हो, 21,000 लोगों की डेथ हुई है पंजाब और हरियाणा अकेले में, और अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और मैं नहीं कह रहा, ये तो इनके कैप्टन साहब कह रहे हैं, इनके सपोर्टर कह रहे हैं, जो इनको फंडिंग कर रहे थे कल तक, वो कह रहे हैं। और बहन जी आप भूल के, कांग्रेस की प्रवक्ता जी आप भूल के, महापंचायत हमने नहीं की थी लाखों लोगों को बिठाकर। वो टकैत साहब को अपने ट्रैक्टर पर हमने नहीं बिठाया था, आपने ही महापंचायत के अंदर टकैत साहब को अपने ट्रैक्टर पर बिठाया था। भूलो मत, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, आपने हर जगह, यूपी में हर जगह जाकर महापंचायत की। आपको वो बंगाल की रैली याद आती है, पर केरल की रैली याद नहीं आती आपको। ये जो एक तरफा मामला है ना, लॉपसाइडेड, ये भी गलत है। मैं कहता हूँ सब कुछ सारे सुपर फ्लैटर पर, तो सबके बारे में बात करो ना। फिर क्यों छोड़ते हो आप प्रियंका वाड्रा की महापंचायत से, कांग्रेस की महापंचायत, जिसमें मैं आपको फोटो भेज देता हूँ कि कैसे कुछ राजनेता किसानों को बेकार है। Okay, yes. Let Wing Commander Acharya respond first and then I'll go to others. Yes. Tanvi, I would have been happier if you would have asked that why the government cannot repeal farm laws. Because if they repeal that, all the cause will as such abolish, it will all finish and people can go back home. And once again, with everybody's consent, the farm laws can be once again prepared. Why this ordinance was passed on 5th June last year? One-sided. The other thing, let me speak, Tanvi, please tell the BJP spokesperson to allow me to speak. All I have to say is, yes, please, one at a time, please, let her finish. Mr. Singh, I can't understand what you're saying either. One at a time. Tanvi, One at a time, please. Yes, Mr. Singh, let her finish. I can't understand both of you together. Wing Commander Acharya, please. Can I just hear Wing Commander Acharya? Yes. So all I was telling you that he talked about direct transfer of money. He talked about direct selling through digital online services. I think he knows about his eNav media, which is like their portal for marketing. Out of 450 sites, only 106 are working. So this is what is the status of their online thing. Now, all they have done is, this government has read this Milton Friedman's book, Capitalism and Freedom, and they are doing shock therapy on everybody. And this is not the country to give shock therapy, because this is only agriculture sector, which is above red line when the economy is absolutely in doldrums. So they should be more concerned about our farmers who are doing good to the country. And then another thing is, 350 people died because government was insensitive towards them. It is not because of COVID. I must tell you, Tanvi, and I must assure you that because there is a difference between Andolan and rally. This is a protest, which is a super spreader of democracy, super spreader of brotherhood, whereas the rallies are super spreader of hatred and politics. So all I have to tell you is... No. Wing Commander Acharya, while points about handling that issue and about farm laws and holding dialogue with farmers is a separate thing. Let's not use the words as super spreaders in connotation to democracy or anything else. These events will become super spreaders of the pandemic and of COVID, nothing else. Please, let's not try and glorify this for our own political points. No, it is wrong and it is unacceptable that 14 opposition parties have stood together to back these protests in times of a pandemic. You're all being extremely selfish.
by doing that simply for your political points. And for all the grandstanding that the Congress party did, 1 minute please, for all the grandstanding that the Congress party did about not holding rallies in the middle of a pandemic, Rahul Gandhi stood up, Priyanka Gandhi stood up, 1 minute please, allow me to finish. Rahul Gandhi stood up and said, I won't do any rallies. Priyanka Gandhi stood up and said, I won't do any rallies. You went hammer and tongs after the BJP over holding political rallies. Everybody but conveniently shut up when it came to the Kumbh Mela. Nobody wanted to talk about it. Nobody wants to talk about the farmers' protests. Why, Wing Commander Acharya? Because this is politically beneficial for you now? When you knew you were going to not make any mark in Bengal elections, you decided to take a grandstand of not campaigning there. It is only their identity is at stake. The farmers will die because of the pandemic. But farm protest has always followed the COVID protocols, which was not followed in the rallies. As Abhimanyu Please, has already what said, are you saying? Can I please play out the visuals of the protests that have been taking place? और ये बात मैं अभिमन्यु कौर को भी कहना चाहूंगी. अभिमन्यु कौर जी, आप कह रहे हैं कि बहुत सैनिटाइज रहे हैं. हर रोज हमें नई चीज पता चलती है इस कोविड के बारे में. अब ये एरोसोल्स हवा से 10 मीटर दूर तक जा सकता है. प्लीज देख लीजिए विजुअल्स जो आ रहे हैं, आपको तो पता ही होगा. आधे से ज्यादा किसानों ने मास्क भी ठीक से नहीं पहना है. कितना भी आप सैनिटाइज कर ले, जहां रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर वो सब इकट्ठा होके बिना मास्क पहने वही हवा में सांस ले रहे हैं. That is the problem. Very quick, final comments from Dr. Rajiv Das Gupta before I wrap this up. Dr. Das Gupta, are we now repeatedly seeing such examples? And I'm not just talking about one party or one incident, where political parties and government seem to be responding to the pandemic purely from an vote bank point of view. If it's the Kumbh Mela, we don't react. If it's the farmers' protest, we in fact back them. If it's our political rallies, we go ahead and back them. But when individuals come out during curfew times or lockdown times, then we start beating them up to the point that they die of torture. Is that fair? No, I don't think such exceptionalism can be made that this is a rally or what this is and what this isn't. There is no exceptionalism, just like no religious congregation can also claim any exceptionalism. At the same time, the onus is very clearly on the top leaderships. It is clearly on the top leaderships. They need to talk, and I hope they talk, and I hope both sides step back. It is not a question of hardening stances. It is a time to step back. Thank you so much. I think that's the most apt way to end this conversation. A big thank you to all of the panelists. I really do hope that somebody explain this to those who are protesting. Tonight I have no qualms about their issue. Everybody has a right in this country to protest. They have the right to raise their voice against the farm laws until they are convinced about it, that the government changes these laws, and that's all fine. But these laws are in suspension right now. There is now, in times of a pandemic, the rules are the same for everybody, for political parties, for religious believers, for protesting farmers, and for the common man. It is about saving lives and containing coronavirus right now. Thank you for joining us.